हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड ऑन ए स्मूथ टेबल बाय ए स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal as shown in the figure. If the acceleration of block is a, the force applied by the string and by the table on the block are respectively ma sec theta, mg minus ma tan theta, ma cos theta, mg, ma tan theta, mg cos theta, ma. Question number 2. A pendulum is hanging from the ceiling of a car having an acceleration a with respect to the rod. The angle made by the string with the vertical is cos inverse a by g, cos inverse g by a, tan inverse g by a, tan inverse a by g. Question number 3. A body of mass m is suspended by two strings making angle alpha and beta with the horizontal. The tensions in the strings are respectively mg sin beta by cos alpha plus beta, mg sin alpha cos alpha plus beta, mg cos beta upon sin alpha plus beta, mg cos alpha upon sin alpha plus beta, mg cos beta sin alpha plus beta, mg cos beta upon sin alpha minus beta, mg sin beta upon sin alpha, mg sin alpha upon sin beta. Question number 4. Two bodies of masses m1 and m2 are connected by a light string going over a smooth light pulley at the end of an incline. The mass m1 lies on the incline and m2 hangs vertically. The system is at rest. The force exerted by the incline on the body of mass m1, see figure. Options are m1g, m1g cos theta, m2g cos theta, m1g root 1 minus m2 by m1 का square. Now solution. A block of mass m is pulled on a smooth table by a string making an angle theta with the horizontal as shown in the figure. If the acceleration of the block is a, the force applied by the string and by the table on the block are respectively ma sec theta, mg minus ma tan theta, ma cos theta, mg, ma tan theta, mg cos theta, ma. Block of mass m स्मूथ टेबल पर है, इसको एक स्ट्रिंग से जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है पुल किया जाता है. दिस इज थीटा. मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m. सपोज जो स्ट्रिंग से फोर्स लगी है दैट इज F. अगर हम इस पे FBD फोर्स डायग्राम लें, इसका वेट mg डाउनवर्ड और रिएक्शन ऑफ दिस टेबल इज सपोज दिस इज रिएक्शन R. तो F एंड R टू बी कैलकुलेटेड. F के दो कंपोनेंट होंगे, F cos थीटा हॉरिजॉन्टल एंड F sin थीटा इसका जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टली ए. हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा
equal to mass into acceleration in horizontal direction. तो horizontal force है F cos theta is equal to m into a. F is equal to ma by cos theta और ma sec theta. तो F की वैल्यू आ जाती है, जो स्ट्रिंग ने फोर्स अप्लाई किया है, लगाया है, वो है ma sec थीटा. अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक दूसरे को क्रॉस आउट करेंगे. वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स. तो अपवर्ड फोर्सेज हैं एफ आर प्लस एफ साइन थीटा एंड डाउनवर्ड फोर्स है दिस इज एम जी. तो आर रिएक्शन होगी जो फोर्स बाय द टेबल एफ साइन थीटा. अगर हम एफ की वैल्यू पुट कर दें तो एम जी एफ की वैल्यू है एम ए सेक थीटा, एम ए सेक थीटा इंटू साइन थीटा. एम जी माइनस एम ए साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो जाता है एम जी माइनस एम ए टेन थीटा. जो टेबल फोर्स लगाएगी वो होगा एम जी माइनस एम ए टेन थीटा और जो स्ट्रिंग से लगी फोर्स दैट इज एम ए सेक थीटा. दिस ए इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 2. A pendulum is hanging from the ceiling of a car having an acceleration a with respect to the road. The angle made by the string with the vertical is cos inverse a by g, cos inverse g by a, tan inverse g by a, tan inverse a by g. एक रोड, इस पर एक कार जो है ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है. लेफ्ट टू राइट ए एक्सेलरेशन से. इसकी सीलिंग से एक पेंडुलम नॉर्मल पोजीशन में जब एक्सेलरेशन से तो वर्टिकली होगा, वर्टिकली हैंग करेगा. और जब अगर एक्सेलरेशन से मूव करेगी कार तो इस पर एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा, इसको इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके कारण ये वर्टिकल से एक एंगल पर जो स्ट्रिंग है इसका एंगल सपोज दिस इज थीटा. यहाँ पर अगर ये पॉइंट सपोज ये ए पर आ जाता दिस इज बी, तो ए पर वो इक्विलिब्रियम में है. ए पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसका वेट एम जी और सूडो फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इसको एक्सटेंड कर दें, दिस इज सूडो फोर्स एम ए. सपोज टेंशन इन दिस इज टी.
तो फॉर इक्विलिब्रियम 3 फोर्सेस हैं, मान लिया इसको अलग से भी बना लें हम। mg, this is pseudo force and tension T. This angle is theta. Then this angle is 90 minus theta. ये mg और ma. T cos 90 minus theta is equal to ma, और T sin theta is equal to ma, equation number 1. And T sin 90 minus theta is equal to mg, और T cos theta is equal to mg, equation number 2. इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड किया, तो T sin थीटा बाई T cos थीटा ये इक्वल होगा ma बाई mg। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, और थीटा की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स a बाई जी। वर्टिकल से स्ट्रिंग एंगल बनाएगा, उसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स a बाई जी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, a body of mass m is suspended by 2 strings making angle alpha and beta with the horizontal. The tensions in the string are respectively mg sin beta upon cos alpha plus beta, mg sin alpha upon cos alpha plus beta, mg cos beta upon sin alpha plus beta, mg cos alpha upon sin alpha plus beta, mg cos alpha upon sin alpha plus beta, mg cos beta upon sin alpha minus beta, mg sin beta upon sin alpha, mg sin alpha upon sin beta. बॉडी सपोज m मास की बॉडी है, तो इसका वेट डाउनवर्ड, इसको रोका गया है 2 स्ट्रिंग से। सपोज दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2। स्ट्रिंग नंबर 1 हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री पर, और स्ट्रिंग नंबर 2 हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। सपोज स्ट्रिंग नंबर 1 में टेंशन T1 और स्ट्रिंग नंबर 2 में टेंशन T2। फॉर इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम, वेक्टर सम विल बी 0। तो T1 cos alpha is equal to T2 cos beta, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो वर्टिकल फोर्सेज होंगी उनका वेक्टर सम भी 0 होगा। तो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। अब T1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम निकालें, कैलकुलेट करें, तो T1 होगा T1 इज इक्वल टू T2 कोस बीटा बाई कोस एल्फा। T1 की ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। पुट वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 2, तो T2 कोस बीटा बाई कोस एल्फा साइन एल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। T2
कोस एल्फा साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू एम जी। T2, this is sin alpha plus beta. Sin alpha plus beta upon cos alpha is equal to mg, और T2 is equal to mg cos alpha by sin alpha plus beta। T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो T1 है T2 कोस बीटा अपॉन कोस एल्फा। तो T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, एम जी कोस एल्फा बाई साइन एल्फा प्लस बीटा इंटू कोस बीटा अपॉन कोस एल्फा। कोस एल्फा से कोस एल्फा क्रॉस हो गया, एम जी कोस बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। तो T1 की वैल्यू है एम जी कोस बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, और T2 की वैल्यू है एम जी कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। This B is correct option. Question number 4. Two bodies of masses m1 and m2 are connected by a light string going over a smooth light pulley at the end of an incline. The mass m1 lies on the incline and m2 hangs vertically. The system is at rest. The force exerted by the incline on the mass m1. See figure. ऑप्शन है m1g cos थीटा, m2g cos थीटा, m1g रूट 1 माइनस m2 बाई m1 का होल स्क्वायर। Suppose this point is A, तो फोर्सेस एक्ट करेंगी ऑन m1, इसका वेट m1g की रिएक्शन R of this inclined, tension T, this is also T. For equilibrium of m2, m2 का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। द सिस्टम इज एट रेस्ट, इट मीन्स जो m2 पर फोर्सेस एक्ट करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज m2g, तो t की वैल्यू है m2g। R कैलकुलेट करना है, जो रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइंड, जो वेट है इसके दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस एंगल इज थीटा, तो परपेंडिकुलर होगा m1g cos थीटा एंड डाउनवर्ड m1g sin थीटा।
For equilibrium of M1, T is equal to M1G sin theta और T की वैल्यू है M2G, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो M2G इज इक्वल टू M1G sin थीटा, G से G क्रॉस हो गया तो sin थीटा की वैल्यू आ जाती है M2/M1। नेक्स्ट, अगर इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस को देखें, इंक्लाइंड के दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, R अपवर्ड एंड M1G cos थीटा डाउनवर्ड। R हो जाता है M1G cos थीटा। M1G cos थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे जो है कोस की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू M2 माइनस M1 पुट कर दी, M1G रूट 1 माइनस M2/M1 का स्क्वायर। जो फोर्स exerted by the inclined on the object is M1G 1 minus M2/M1 का स्क्वायर। D is correct option.